SMS spam detection. Is it clear? Yes sir. तो ये जो है स्पैम डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, ठीक है. आई विल शो यू हाउ टू वर्क ऑन दिस थिंग्स, ओके, with some very basic algorithm, okay, so that you can have some idea. So just open this code file, okay. Okay, got it? Yes sir. Just look at this file, okay, what I am doing here. Is it the same file? Will you check that? Yes sir. Seems to be the same. Okay. So again, I am reading this file, okay, and if you check the file, okay, let me open this. Okay, so here we have this. Just a minute. Yeah, this one. If you check this file is in this form, okay. Here, if you check, the first one is your class, okay, okay, y target, and the second column will be your data, the masses, is it? The mail. Is it clear? Yes sir. So in this way we have, so we don't have a header here, okay. From first event we have the data. If you have this kind of issue, then you need to say what you need to tell your pandas that I have no header, okay, and you need to do what you need to define header with these names, okay. So first column will get named class and the second column will get named SMS. Is it clear? Yes or no? Yes sir. Okay, so just read the data. Okay, so you will see this particular thing, okay, ham, go until wrong point, something, okay, we have this data. Now, the problem is what, if you check the class value, so now what we are doing, we are checking what is the value underscore count, means what is the say counting of this ham class and spam class. So if you see, most of the data related to ham and only few of the data is related to spam. Is it clear? Yes sir. Now, let's see. So ham spam 0, if you check that, okay. So 0, ham spam 0, 0 means what? It means you are looking at first index. Is it clear? So that's why you are getting 4825. Either you may this or you may do what dot lock and here you may pass ham. Is it clear? Okay, just a minute. Okay, I didn't run this cell. So see, it will give you the same thing. Okay, is it clear? Yes or no? So this is a series form, is it? यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ जी. क्लियर है? भाई आवाज आ रही है ना? हेलो. यस सर, आ रही है सर. भाई बोल दे यार, हमें लगे कि नेटवर्क चला गया भाई. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. अब देखिए हम कर क्या रहे हैं. अब हम क्या करें, पहले जो क्लास लेवल है ना, क्लास जो है कॉलम, हम एक नया कॉलम डिजाइन कर रहे हैं विद नेम लेबल, और इसमें क्या कर रहे हैं, जहां कहीं भी क्लास में हैम है वहां पे 0 सेट कर दे रहे हैं और जहां कहीं स्पैम है वहां पे 1 सेट कर दे रहे हैं. सो वो काम हम कैसे करेंगे
देखिए हमने एक नया कॉलम डिजाइन किया विद लेबल नेम, और यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इस पे अप्लाई कर रहे हैं डॉग्स के क्लास कॉलम पे, ठीक है। और मैपिंग क्या कर रहे हैं कि अगर हैम आ रहा तो उसको 0 कर दो और स्पैम आ रहा है तो उसको 1 कर दो। इज इट क्लियर व्हाट वी हैव डन हियर? Yes, sir. Okay, so in this way we have this label column. तो देखिए हमने क्लास को तो नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज विद योर एसएमएस कि एसएमएस को नंबर पे कैसे कन्वर्ट करें। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले जो डॉग्स का एसएमएस है उसको एक्स में डाल दे रहे हैं और जो डॉग्स का लेवल है उसको वाई बना दे। तो मैंने एक्स और वाई तो बना दिया। आई होप दिस मच थिंग इज क्लियर है। यस और नो? क्लियर है? ठीक है भाई? हाँ जी, क्लियर है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल कर रहे हैं और इसमें एक्स और वाई डेटा को पास करा रहे हैं। तो डेटा स्प्लिटिंग हम पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट में मेरे पास डेटा आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ या ना? तो देखिए हमारे पास एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में जो है एसएमएस है, ठीक है, और एसएमएस जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। और अगर आपको याद हो, अगर देखो बोर्ड से बता रहे, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो हमारा इनपुट है वो एसएमएस है, ठीक है। अब देखो कुछ एसएमएस की लेंथ इतनी हो सकती है और कुछ जो है वो छोटे कम ही वर्ड्स के हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम अपना मॉडल किसी भी डेटा पे ट्रेन करते हैं तो फॉर ईच इनपुट यू शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ काउंट, इज इट? यस और नो? अगर y है मेरा, यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, सो हर एक इनपुट जो है वो 4 लेंथ का ही होना चाहिए, इज इट? दिस 4 फॉर व्हाट? x1 x2 x3 x4 वैल्यू। यस और नो? इज इट क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसएमएस है सो लेंथ वेरी कर रही है, प्लस वो जो एसएमएस है वो नंबर्स में नहीं है, सो वी नीड टू कन्वर्ट दोस थिंग्स। ओके, सो पहले तो मैंने डेटा को ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उनको जो है नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वेक्टराइजर, एक काउंट वेक्टराइजर करके मेथड है, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट दिस काउंट वेक्टराइजर इज, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो सपोज करिए ये आपका एसएमएस डेटा है, इज इट क्लियर? ये कई सारे एसएमएस जो है वो आ रखे हैं, यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? तो काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा, इस पूरे एसएमएस में जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, क्लियर है, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उनके कॉलम्स जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो टोटल थाउजेंड्स ऑफ यूनिक वर्ड्स मिले मुझे, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उन हर एक वर्ड के लिए एक कॉलम असाइन कर देगा, सो टोटल 1000 कॉलम्स मेरे पास हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? यहां तक क्लियर है? Yes, अब sir. वो वन बाई वन सेंटेंस गया, सपोज करो ये पहला सेंटेंस आया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इनमें से वर्ड्स फाइंड आउट करेगा, जैसे सपोज करो द आया, तो द इस सेंटेंस में कितने टाइम आया, ठीक है। जितने टाइम आएगा यहां पे इस टेबल में द के करस्पॉन्डिंगली उन्हीं काउंट में रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्लियर हो? फिर नेक्स्ट वर्ड उठाएंगे, वो जितने टाइम इस सेंटेंस में आएगा, इसी सेंटेंस में उसके काउंट को मैं यहां पर उस वर्ड के करस्पॉन्डिंगली एंट्री कर दूंगा, और जो बाकी बचेंगे उनको मैं 0 0 सेट कर दूंगा।
तो अब इस तरीके से समझो कि अगर मैं सेम टास्क हर एक मैसेज के लिए करूं तो क्या मैं हर एक मैसेज को 100 साइज के वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हाँ या ना? मेरे हर एक मैसेज की साइज सेम हो गई कि नहीं हो गई? अब क्लियर है ये कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो यही काम जो है वो काउंट वेक्टराइजर का होता है। ठीक है, यहां पे तो मैंने क्या किया, फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा पे काम कर रहे हैं हम लोग। सो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया काउंट वेक्टराइजर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, काउंट वेक्टराइजर में स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे द, नहीं सॉरी, स्टॉप वर्ड जैसे द हो गया है ना, और एक्सक्लामेटरी मार्क हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्टॉप वर्ड्स हैं जिनको कि हम इन वर्ड्स के लिए हम कॉलम नहीं असाइन करेंगे। ठीक है, एंड हो गया, इनके लिए हम कॉलम नहीं असाइन करें, क्यों? क्योंकि ये सब सपोर्टिव वर्ड्स हैं, है ना, इनका एक्चुअल में मीनिंग कुछ नहीं है। ठीक है, एम हो गया, तो इन सारी, ये सारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं। तो हर एक डिक्शनरी, सो इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी स्टॉप वर्ड्स डिफाइन है वो मैं यहां पे ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा जो मैसेज है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो मैंने स्टॉप वर्ड्स लिया और मैंने बोला इंग्लिश को कंसीडर करें, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं यूनिक नेम्स, यूनिक वर्ड्स का कॉलम बनाएगा जो कि स्टॉप वर्ड्स में नहीं आ रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाट वी हैव डन येट। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ये काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, अब मुझे क्या करना है, पहले तो इस डेटा से यूनिक नेम्स फाइंड आउट करना, यूनिक वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो वो यूनिक वर्ड्स किससे फाइंड आउट करोगे, एक्सट्रेन से फाइंड आउट करोगे। तो पहले मैंने फिट अप्लाई किया, वेक्ट डॉट फिट। ओके, तो ये क्या करेगा, जितने भी यूनिक नेम्स हैं आपके एक्सट्रेन में वो सारे फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन कितने यूनिक वर्ड्स मिले, तो आप चेक कर सकते हो। सी, तो आप वेक्ट डॉट वोकैबुलरी डॉट कीज अप्लाई करोगे। ठीक है, तो वो आपको काउंटिंग बता, फिर मैंने उसकी लिस्ट में कन्वर्ट करके लेंथ फाइंड आउट, ये एक्चुअली डिक्शनरी होती है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं यहां पे आपको शो करूं, कंट्रोल सी, तो देखिए इसने हर एक यूनिक वर्ड को एक आईडी असाइन की है। सी, एफिडेविट 819, सेज 5456, जीटी 3040, ट्विक्स 6515, डिवीजन 2228। इज इट क्लियर? ये सुनो, तो इसने सारे यूनिक वर्ड्स को एक यूनिक नंबर असाइन किया है और उसको डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर कर लिया। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। इज इट? यस सर। अब डिक्शनरी में से अगर मुझे काउंटिंग करनी तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो मैं कीज निकाल लूं, है ना। तो वेक्ट वोकेबुलरी डॉट कीज मैंने निकाला, तो ये सारी डिक्शनरी इसने दे दिया, है ना, डिक्शनरी की कीज रिटर्न कर दिया। फिर मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके उसका लेंथ फाइंड आउट कर लिया टू प्रिंट द काउंट। तो इफ यू सी, वी हैव दिस 7115 यूनिक नेम्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, काउंटिंग अप्लाई करनी है ना। तो अब वो क्या करूंगा, मुझे यूनिक नेम्स मिल गए, मतलब कि मेरे ये कॉलम्स असाइन हो गए। ठीक है, कि कितने कॉलम जनरेट होंगे, तो यहां पे कितने हो रहे हैं, 7115। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक सेंटेंस को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो वो जो काम है ना, हर एक सेंटेंस को इतने साइज के वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का काउंटिंग के बेस पे, वो काम ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा वेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, ये मैंने एक्सट्रेन पे अप्लाई किया, उसको मैंने एक्सट्रेन ट्रांसपोज ट्रांसफॉर्म में स्टोर कर लिया।
और ऐसे ही टेस्ट पे अप्लाई करके उसमें स्टोर कर लिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, इज इट? यहां तक क्लियर है? Yes. अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सपोज करो मुझे पहला वेक्टर चेक करना है कि पहला वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो मैंने पहले उसको एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, टू एरे, और उसको मैं 0 पहला जो है एरे वो प्रिंट करा रहा हूं। तो देखिए क्या हो रहा है, it is showing 0 0 and in between you have some values. Okay, that is the thing. चलिए, आप चाहे तो एक्सटेंड ट्रांसफॉर्म का शेप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो डॉट शेप चेक कर लो। तो सी 4179 7115। ओके, सो कॉलम कितने मिले? 7115। व्हाई? बिकॉज इतने हमारे यूनिक नंबर्स थे, यूनिक वर्ड्स थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो नाउ यू हैव दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म्ड फाइल। नाउ यू नीड टू डू व्हाट? ओके, नाउ यू नीड टू, अब देखिए आपका डेटा रेडी हो गया है, ठीक है? एक्सचेंज ट्रांसफॉर्म जो है नंबर्स फॉर्मेट में बन गया है। तो अब आपको करना क्या है, आप डायरेक्टली नाइवेस क्लासिफायर कॉल करिए। सो फ्रॉम sklearn डॉट नाइवेस इंपोर्ट मल्टीनोमियल एनबी ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए काउंटिंग बेस पे काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए मल्टीनोमियल ज्यादा बेटर परफॉर्म करने। तो हमने मल्टीनोमियल एनबी कॉल किया, हमने फिटिंग कराई, और फिर प्रेडिक्ट करा दिया एक्स टेस्ट पे, ठीक है? एंड आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। ओके, और फिर मैंने एक्यूरेसी स्कोर फाइंड आउट किया, तो मेरा 98% जो है वो टेस्ट डेटा के साथ एक्यूरेसी आई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, इज इट? यस और नो? Yes. Okay, so that is the thing, and then we just printed these values. Okay, precision, recall, everything I have printed this. Okay, see, the same thing we did here. Okay, and then I just printed this TPR and FPR. Okay, this is the thing. If you want to check, just check it. Okay, मैंने एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट कराया, फिर वहां से मैंने क्या किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कराया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से मैंने TNFP FNTP फाइंड आउट किया। वहां से फिर मैंने सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिसीजन, रिकॉल, हर एक चीज, सॉरी, हर एक चीज मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है? सारी चीजें प्रिंट कराई मैंने। फिर आप चाहे तो आरओसी कर्व भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी आपने प्रिडिक्ट कर ही लिया था, वाई प्रिडिक्ट प्रोबा। अब प्रोबा यूज कर रहे तो वो दो दो क्लासेस थी, तो आपको उसने दो प्रोबेबिलिटी दिया, तो आपको ये वाला कॉलम सिलेक्ट करके इस पे वर्क करना। तो देखिए मैंने लास्ट कॉलम को सिलेक्ट किया और आरओसी कर्व को दे दिया, तो उसने टीपीआर एफपीआर दे दिया और ऐसे ही स्कोर प्रिंट करा दिया। सो दैट्स व्हाट वी डिड हियर। अब आप चाहें तो इन सब का एक सिंगल पाइपलाइन भी डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए मैंने यहां पे पाइपलाइन लिया, जो भी मेरे पास मैसेज आएगा उसे पहले मैं काउंट वेक्टराइजर में पास कराऊंगा एंड देन मल्टीनोमियल में पास कराऊंगा, ठीक है? तो ये मैंने पाइपलाइन बना दी, और अब डायरेक्ट मॉडल डॉट फिट जो है वो एक्सट्रेन, जो मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट डेटा था, उस पे अप्लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. देन जो है हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करा रहे हैं टेस्टिंग डेटा के लिए, एंड इफ यू वांट देन यू कैन प्रिंट इट फॉर ट्रेनिंग डेटा आल्सो। ओके, I hope this thing is clear, is it? Yes, sir. Okay, so check this complete code. If you face any problem anywhere, just let me know, okay, so that we can discuss that thing. I hope this thing is clear. Okay, just check these things. If you face any problem, then just let me know. Takes 5 minutes, great. Okay, complete this complete code. If you face any problem, then just ask. Yes, sir.
सर आपके उसी नोटबुक में पाइपलाइन का सब है, स्पैम एंड हैम वाले में? हाँ भाई उसी में से। आई डोंट थिंक हमारे वाले में है सर। चलो रुको मैं वाला भेज देता थैंक यू। check now I have done that okay in your classroom यस सर। हाँ सर, इसमें है।
हो गया भाई? हाँ सर। समझ आ गया? हम्म, हम अभी पाइपलाइन वाला करने वाले हैं राइट? नहीं, पाइपलाइन वाला देख, वैसे ही तो करना है। पाइपलाइन में कुछ नहीं हाँ, समझ आ रहा? नहीं नहीं वहाँ पे एरर दे रहा है इसलिए देखो। कहाँ पे? मॉडल 2 में जो दो पाइपलाइंस थे, मॉडल 1 वाज द जो हमने बेसिकली अभी किया, वो काउंट वेक्टराइजर एंड देन यहाँ पे बर्नौली है, बट दैट्स द सेम थिंग। वो मॉडल 2 में मुझे जब मैं फिट करने जा रहा हूँ तब एरर आ रहा है। हाँ सर, काउंट वेक्टराइज नॉट डिफाइंड आ रहा हाँ वो तो अच्छा, दैट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक काउंट वेक्टराइजर में। यहाँ पे वो नहीं है, मतलब ये मेथड है ना, तो उसको ऑब्जेक्ट बना लो, है ना? ये करके देखो, क्लियर है? हाँ सर। इसको करके देखो। क्लियर भाई? हाँ एक सेकंड। हाँ सर चलो। चल रहा है ना? वो हाँ मेथड, मुझे वो ब्रैकेट हट गया था ना। ऑब्जेक्ट पास कराओगे ना, नेम थोड़ी उसको समझ में आ रहा। ठीक है, हाँ सर। दस I hope this much thing is clear, huh? What we have done here. Okay? सर वो वहाँ पे वो फंक्शन ट्रांसफॉर्मर वहाँ पे क्या कर रहा है? कहाँ पे? इन द सेकंड पाइपलाइन आफ्टर काउंट वेक्टराइजर द फंक्शन ट्रांसफॉर्मर सेकंड वाला। गॉसियन जो एनबी है ना, ये जो बर्नौल, ये काउंट वेक्टराइजर जो है ना, वो नंबर में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन वो नंबर जो है वो एरे फॉर्मेट में नहीं होता। ठीक है? सो काउंट ओके। वेक्टराइजर को जो आउटपुट है ना, हमें उसको एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट, क्योंकि गॉसियन एनबी तो प्योर न्यूमेरिकल डेटा पे काम करेगा। ठीक है? क्लियर है? ओके डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, तो इसलिए उसे ऑलराइट। कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको एरे में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है? दैट्स व्हाट वी हैव डन। ऑलराइट थैंक यू। If you just do this, okay, if you do this, let me comment this, okay, and then let me tell you. So this thing is okay, okay, so see, हाँ सर। okay, यहाँ just a minute, why it is giving now? आई थिंक वो स्पेलिंग डिफरेंट है काउंट वेक्टराइजर का। अच्छा 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 अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मॉडल तो बन जाएगा। लेट्स सी वेदर इट हाँ विल सर। वर्क ऑन। तो see, इसने एरर दिया है मॉडल 2 पे, और ये बोल रहा है a sparse matrix was passed, but dense data is required. Use X2 array to convert to a dense numpy. ठीक है? यस सर। सो इसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कि हमें फिर ये उसको कन्वर्ट करना पड़ा। ऑलराइट। ठीक है? अभी क्यों आ रहा भाई? चलो, हो गया ना तुम लोग का भाई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रन हो गया ना? है ना? I had to import from sklearn pre-processing वो function transformer. After that it worked. इसको मैं कर देता हूँ ना, फ्रॉम sklearn Pre-processing. और प्री प्रोसेसिंग import function transformer. Okay, now do everything is fine. Okay, done. हाँ सर। And I use it for your any, अब यहाँ पे देखो, मैं कोई भी मैसेज डायरेक्टली पास करा सकता हूँ। ओके, लेट मी गिव यू दिस थिंग। तो अगर मैं चेक करूँ एक्सट्रीम, तो दिस इज, सॉरी, ओके, सो कैपिटल एक्स
ओके, ये मेरा डेटा है। अब मैं यहाँ से सपोज करो पहला डेटा फाइंड आउट करता हूँ, तो डॉट लॉग 2795 इज दैट इज माई फर्स्ट डेटा। ओके, या फिर एक्स टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। एक्स टेस्ट पे देखो प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। एक्स टेस्ट देखा मेरा ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 0 उठाता हूँ, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 नहीं है वहां पे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ डॉट लॉग, तो कौन सा 1372। इज इट क्लियर? तो दिस इज द मैसेज। यस ओके, अब अगर मैं मॉडल 2 पे प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैंने ये लिखा मॉडल _2 डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ पे मैंने ये दिया, देखो क्या देता है मुझे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। सो इट विल गिव मी एरर। व्हाई? आई टोल्ड यू कि जब भी आपका सिंगल डेटा हो, है ना, यस सर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिसीव्ड, ओके, तो वो क्या बोलेगा? raw text document expected, okay, string object is received। यस सर। तो रॉ टेस्ट पास कराने के लिए कैसे करोगे भाई? हाँ जी, क्लियर है? सर्च करो इसको, कैसे करोगे? रॉ डेटा कैसे पास करोगे? अगर मैं देखो इसमें अगर पूरा डेटा पास करा दूं, है ना, अगर मैं एक्सटेस्ट पास करा दूं तो इट विल टेक द कंप्लीट थिंग, ओके, इट विल डू द प्रेडिक्शन। बट मैं यहां पर अगर जस्ट एक सिंगल डेटा पास करा रहा हूं, ओके, हाँ तो सर। ये एरर क्यों दे रहा है? Are you getting my point? And it's not यस just सर। with this, it's not just with this, okay, it is with every code, okay। किसी भी कोड में जब आप प्रेडिक्शन करोगे और सिंगल डेटा पास करोगे, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है ना, तो वो वहां पे एरर। तो अब देखो ये क्या दे रहा है? वैल्यू एरर दे रहा है, इटरेबल ओवर रॉ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड, ओके, string object has received। So check the thing, okay, find the solution and then send it, tell it to me, okay, okay। Sir, so is the issue only with like a single thing, or if we, for example, put a subset of X test, that would work, right? That would work, yeah, definitely that would work, okay। Yeah. For single instance it will do, it will give you error, okay। Just find out Yes. what will be the solution, okay। चलो ये आपके लिए है, करो। जरा क्लासरूम चेक करना, मैंने एक कुछ फाइल शेयर की हुई है, ठीक है, Yes, sir. चेक करना जरा, देखिए मैंने शेयर किया कि नहीं यार। हाँ किया हुआ मैंने, ठीक है। सो यू हैव 3 फाइल्स, ओके। इफ यू चेक, वन इज द SVM, okay, support vector machine, and the Python file and the text file, okay, code। Is it clear? हाँ सर। हाँ। और ये जितनी प्रॉब्लम है भाई, सारी जो है कैगल की प्रॉब्लम, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना। सो ऑल ऑफ देम आर लाइक अ रियल प्रॉब्लम्स यू आर वर्किंग विद, ओके। Yes, तो sir. चलो इतना हो गया भाई। अब हम आते हैं SVM पे, ठीक है। Sure. So now the next one is support vector machine, okay, this is the new algorithm। so अभी तक आप लोग देखिए तो हम लोगों ने कौन कौन से एल्गोरिथम शेयर कर लिया? लीनियर रिग्रेशन, ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, Sir. सुनो, हाँ जी, हाँ सर। KN। ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन सिर्फ रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होगा, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसके लिए यूज हो रहा है? दैट इज फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? Yes, sir. देन वी टॉक्ड अबाउट KNN। KNN आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, रिग्रेशन के लिए भी और क्लासिफिकेशन के लिए भी,
Okay, then we talk about naive Bayes. naive Bayes को आप कैसे यूज कर सकते हो? केवल क्लासिफिकेशन के लिए. I hope this much thing is clear. Huh? Yes or Yes, no? sir. Now we will talk about SVM, and that you can use for both regression also and classification also. Is it clear? Yes, sir. Yeah, so this is for support vector machine, okay, and this is one of the strongest algorithm, okay, we have one of the strongest algorithm. You can check it, okay, you can check it, okay. So I hope up to this everything is clear. Huh? Now let's talk about this SVM, okay, support vector machine. So just look at here, a support vector machine SVM is very powerful and versatile machine learning model, okay, capable of performing linear or non-linear classification and regression, okay. So it is capable to both. See, in linear regression what we see, if we have this, okay, this kind of fashion, okay, linear fashion data distribution, in that case it's easy to find out this, okay. But we can use this for non-linear fashion also, okay, non-linear data distribution also. I will show you that thing, okay. So SVM is capable to handle this linear and non-linear classification also, even regression problem. Is it clear? Yes, sir. It is one of the most powerful model in the machine learning and is a must learn for anyone interested. Okay, that's what we have written. So SVMs are particularly well suited for classification of complex but small or medium size data set. तो अगर आपके पास डेटा सेट बहुत ज्यादा नहीं है, small data set है, but you have number of complex means what? You have number of columns. Okay. In those cases even you can start with this SVM model. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So always remember, if you have some complex data, it's a kind of first choice to start with your. It should be a first choice. Okay. Use your SVM. Okay. On your data. So that's how powerful it is. Okay. Now let's talk about what do you mean by this classes. So for now, okay, for now I am considering classification problem. Is it clear? Yes, sir. अभी के लिए हम SVM को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के तौर पे जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं. देन आई विल टेल यू हाउ वी यूज इट इन अ रिग्रेशन प्रॉब्लम. ओके ओके सो या सी so till now, okay, so suppose we have this. I think this image is very clear to you have this PDF file also, so just Yes, sir. check it. Okay, so in this page you have seen this okay, this green dots and this red dots, is it? Yes, sir. Consider these green dots as a one class data and red dots as a one class of data, okay, other class of data. So you have two class classification problem here. Is it clear? Yes, sir. So if we talk about other classification algorithms, okay, so in that case, if these are the dots, okay, of one class and these are the dots of other class, okay. So other algorithm does what? They tries to find out a line, okay. They focus to find out a line which can separate these two classes, is that? Yes, And sir. which we call it decision boundary. Decision boundary. So from here I can say if some points lie right side to this particular boundary, that will belongs to this class, and if some points lies on the left hand side of this particular line, that will belongs to this class, isn't? Yes, sir.
But what about the point which lies very close to this particular boundary? On this side or say other side? So is it easy to say that no, this point should belongs to this class, not this class, or this point should belong to this class, not this class? No, Is sir. it? It's not easy to say that thing. Okay. Yeah. So to solve these kind of this kind of confusion, we we have this SVM as in picture. Okay. So in this SVM, what we have, instead of finding, okay, just read my words. Okay, instead of finding a decision boundary which can distinguish, which can separate these two classes, here our task is to find out a widest street, okay, a widest street which can separate these two classes. Is it clear? Is it Yes, clear? sir. So instead of finding just a line, here what we are doing, we are trying to find out one street, okay, which can separate these two classes. Now, how will you decide the boundary of these streets? Okay, so this one, see, this middle line is nothing but your decision boundary. This thing is clear. Yes, sir. Now this line, okay, the right side line will be a line which is drawn with respect to the closest point to this particular boundary box, sorry, boundary line. Is it clear? इस डिसीजन बाउंड्री के जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको रेफरेंस मान के जो लाइन खींची गई है ना, दैट विल बी द बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट. इज इट क्लियर? Yes, sir. Similarly, on left hand side here also, the line, okay, with considering this dot, it means with considering this closest dot to this particular boundary line, the decision boundary, we draw a line, okay, that will work as a left side boundary of this particular street. Is it clear? So in this way, we find the particular boundary, decision boundary with street, okay, widest street, okay, and in this widest street we have these two as a boundary. Is it clear? Yes, sir. Okay, that's what we have. So the points, okay, which we take as a reference, okay, to draw these boundaries, we call those points as a support vectors. Is it clear? Yes, sir. Okay, that is the thing. So our task is what? Our task is to find out a widest street, okay, in such a way that this street can separate these two classes. So that's why SVM is more powerful than the other algorithm which only tries to find out the boundary line itself. Is it clear? Yes, sir. यहाँ पर हम सिर्फ लाइन पे बात नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम किस पे बात कर रहे हैं? स्ट्रीट पे बात कर रहे हैं. क्लियर है? So that's why it is more powerful. So just read these things, okay? The SVM method can be explained with the help of this figure. The data has two classes as noted by colors, okay? They are clearly linearly separable. The goal of the SVM classifier challenge here will be to find the widest possible street between the classes. Is it clear? This is called large margin classification. Okay, that is the second name of your SVM. Okay, the bold line in the middle, okay, this one is your decision boundary. Okay, just read this line. Okay, notice that adding more point, it means adding more training instances of the street, okay, will not affect the decision boundary at all. For example, if I add more green points of the street, it means here in this location, so will it violate any will it violate the class boundary? No. No, it is on the right side, isn't it? It is on the correct side. Similarly, if I have some red points on this location, okay, of this right boundary, okay,
So in that case, it is not violating any boundary. It is not violating any conditions. Okay. But if any points lies in between this street, suppose one green point lies in between this street. So it means what? It is violating this street, isn't? Yes, sir. क्लियर है? तो इसका मतलब वो रॉन्ग साइड पे मूव करने की कोशिश कर रहा है. ओके, सो वी नीड टू, इन दैट केस वी नीड टू आइदर reduce the width of this street or we need to shift this boundary, is it? We need to do some changes so that every point should be on the same on its proper side. Okay, clear है भाई? So सर पॉइंट्स लाई भी नहीं करेंगे उस लाइन के अबव, जैसे अगर ग्रीन पॉइंट इस लाइन के अबव लाई करा तो फिर इसे एज अ बाउंड्री समझो, ठीक है, बॉर्डर समझो, दिस स्ट्रीट. ओके, if any point tries to violate this boundary or this border, it means it is trying to moving on the wrong side. Is it clear? no sir, the lower line, if the point lies on the lower line, so If it tries to violate, okay, it means it is moving towards the wrong side, so we will consider it as an error. Okay, yeah. If it is on the left hand side, it means अगर वो जो है ग्रीन पॉइंट इस बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तब तो एरर हमारा जीरो होगा. जैसे जैसे वो इस बाउंड्री को वायोलेट करके राइट हैंड साइड पे जितना जाता जाएगा उतनी एरर हमारी बढ़ती चली जाएगी फॉर दिस ग्रीन पॉइंट. इज इट क्लियर? Sir. क्लियर है? सिमिलरली फॉर रेड पॉइंट, जब तक वो इस बाउंड्री के राइट हैंड साइड है तब तो ठीक है. जैसे ही वो इस बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता चला जाएगा, तो जितना ज्यादा मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा उतनी ज्यादा हमारी एरर बढ़ती चली जाएगी. इज इट क्लियर? yes sir. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. है सो व्हाट डू मीन बाय सपोर्ट वेक्टर्स? ये सारी चीजें क्लियर हो गई? कुछ ऐसा जो ना समझ में आए प्लीज बता दो यार, so that we can move further. Sir, so like when we were doing like the classic decision boundary, usme bhi to like there was always like a chance of error, right? Ki like there might still be some points which might be on the other side if the data doesn't really That is okay. fit, That is just okay. drawing us. Yeah, yeah. The same thing is here, but here our reference will be only just a line. Okay. Here we have a street. Okay. क्लियर है? तो ये मोर रिफाइंड वे में डिफाइन कर रहे हैं ना हम, है कि नहीं? ठीक है. That's why. But it still will have like the core problems if the data itself is of a wrong type, like circular data, जैसे आप बोल रहे थे, if all the data points are in that manner that you can't really draw like a straight line to divide it neatly. No, so we have solutions for this. That's why I said that it is for non-linear. Okay, I will show you that thing. Okay, a bit later. Okay. Okay. Sir. Just a minute. I will tell you. I will show you how it will work there also. So up to this, everything is clear or not? Yes, sir. Okay. So that's why we have this linear. This SVM. Okay, it's much better. Now, but it is very sensitive. Okay, sensitive to what? सपोज ओके, स्केलिंग के केस में ये सेंसिटिव है. इट मींस अगर आपका डेटा स्केल नहीं है तो उस केस में सपोज करिए दो एक्सिस हैं, x1 और x2. ओके, ये दो फीचर्स हैं. x0 में जो फीचर है वो 1 2 3 4 इस स्केल में, ठीक है, 1 डिजिट स्केल पे है. और जो x1 में फीचर्स है वैल्यू वो 2 डिजिट में स्केल है. इज इट क्लियर? ये सुनो. यस सर. तो उस केस में अगर मैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो आपकी जो स्ट्रीट है उसकी विड्थ कम हो जाएगी. इज इट क्लियर? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच इन द स्केल. ओके, सिमिलरली अगर आपने x1 को भी स्केल कर दिया उस केस में आप देखेंगे तो स्ट्रीट की विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी स्केल डेटा के साथ. इज इट क्लियर? यस सर. तो इसलिए पहली कंडीशन क्या आई कि आपके स्केलिंग करना मस्ट है अपने डेटा को. Is it clear? Yes, sir.
Because that's what we have done here. Now, so if this is the thing, चलो अब आता है एक हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन क्लासिफिकेशन. ओके, सपोज इफ इन योर डेटा you have some outliers available. ओके, तो सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन तो बाकी सही चल रहा है, लेकिन एक ग्रीन पॉइंट आउटलायर्स होने की वजह से सपोज करिए इस ब्लू वाले एरिया में आ गया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. So now is it possible to find out a street which can distinguish these two classes very clearly? No sir. No. Okay, it's a kind of impossible. Similarly, अगर आपका एक ग्रीन पॉइंट मतलब यहां पे तो नहीं है बट वेरी क्लोज टू ब्लू पॉइंट हो गया, तो उस केस में क्या होगा भाई? उस केस में आप स्ट्रीट तो फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन स्ट्रीट की विड्थ क्या होगी? वेरी नैरो, isn't? Yes sir. It will be very narrow. Okay, so if we strictly impose, so अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस चीज को आप समझना, if we strictly impose, और अगर सपोज करो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, है ना, कि ठीक है मेरा एक डेटा ही तो मिसक्लासिफाइड होगा, अगर मैं एक एरर को एक्सेप्ट कर लूं, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes sir. अगर एक डेटा की एरर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूं, so now is it possible to draw a widest street here? Yes sir. Okay, similarly here also if you have one outlier just because of one data, अगर मैं इस एरर को एक्सेप्ट कर लूं, still we can find out the widest street. Is it clear? हाँ सर. So that's what we call it. So अगर हम स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं हमें एक भी एरर नहीं चाहिए, so we call it hard margin classifier. Okay, एंड अगर हम कुछ एरर एक्सेप्ट करके, ओके, वेरी स्मॉल एरर एक्सेप्ट करके वाइडेस्ट स्ट्रीट फाइंड आउट कर पाते हैं, तो हम उसे कहते हैं सॉफ्ट मार्जिन. इज इट क्लियर? Yes sir. सो ऑलवेज इफ यू बी सो रिजिड कि नहीं मुझे हार्ड मार्जिन मतलब कि कोई एरर नहीं चाहिए, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल. इन दैट केस इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट द वाइडेस्ट स्ट्रीट. ओके, but if you are a bit flexible, then you may get a better classifier. Okay, you may get some widest street. Okay, that's what we want to say. So if we strictly impose that all instances be of the street and on the correct side, this is called hard margin classification. Is this clear? Yes sir. So there are two main issues with this hard margin classification. Okay, I have shown you that. Okay, so first it only works if the data is linearly separable, तभी आपका ये hard margin work करेगा. And second, it is quite sensitive to your outliers. Is it clear? Yes sir. So that's what we have here. Okay, I have shown you these things. Okay, so अब होता है कि भाई हार्ड मार्जिन पे हम हमेशा नहीं चल सकते, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोनों चीजों में एक मेंटेनेंस, एक में काइंड ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी एरर भी ज्यादा ना हो. ठीक है, हम थोड़ी बहुत एरर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी एरर भी ज्यादा ना हो और हमारी स्ट्रीट भी वाइडेस्ट बनी रहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. So we need to maintain that degree. Okay, and that thing is called as a soft margin. Okay, so to avoid these issues, okay, it is preferable to use a more flexible model, and the objective is to find a good balance between keeping the street as large as possible and limiting the margin violation. Is it clear? Yes sir. Okay, so we will put some limit, okay, that we can accept only this much of error, okay, not beyond it. Is it clear? Yes sir. So if you do these kind of implementation, so that classification, that SVM model will be called as a soft margin classification. I hope this thing is clear. Huh? Is it clear? Yes sir. Yes. So that's what we have, soft margin and hard margin. And how will you control this? How will you control that this much of error can be acceptable, this much error, no, we are moving
It means from moving to hard margin to soft margin, because sometime it may happen that it's not easy to possible. ओके इस केस में क्या होगा, आपका मॉडल, अगर आपने मॉडल डिजाइन करने की कोशिश की तो वो क्या होगा, अंडर फिटिंग मॉडल हो जाएगा, इज इट? हाँ सर। ओके राइट। तो हमें वेरिएशन को चेक करना है, मतलब कि हमारा मॉडल हार्ड मॉडल और सॉफ्ट, हमें चेक करना पड़े किस कंडीशन के लिए मेरा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो उस चीज के लिए आपके पास अब यहां से पैरामीटर से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हर एक मॉडल में कुछ कुछ पैरामीटर्स आना शुरू हो जाएंगे जिनको कि आपको ट्यून करना है। क्लियर है? हमारा राजू लिस और क्या मैं बोल लासो रिज में मेरे पास जो है पैरामीटर थे, ठीक है। यहां sir. पे अब नियम में मेरे पास सी पैरामीटर है। ओके, इज इट क्लियर? Yes sir. Okay, so do one thing, recall up to this everything, then we will move further. Okay, let's take 5 minutes to it. Okay, Yes sir. just cover everything. Okay, because this is the very important one algorithm. Okay.
Done? Yes, sir. Okay. Just a minute. Yeah. Okay, that is the चलो क्लियर हो गया भाई? हाँ सर. हाँ जी, चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो सी पैरामीटर है ना, हाँ या ना, क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, सी पैरामीटर्स के बारे में बता दो कि कैसे जो है वो अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग को मूव करता है. ठीक है, सो जस्ट चेक योर क्लासरूम. आई हैव शेयर्ड इवन यू इन अ रिटन फॉर्म. ओके, so the C parameter, it does what? Okay, it controls. Yeah, oh, just a minute. So C parameters means what? The C parameters controls the trade-off, okay, between maximizing the margin and minimizing the classification error. Is it clear? C parameter जो है वो handle करता है. Just look at this point. A smaller C value, okay, just read this. A smaller C value allows for a softer margin, meaning the classifier will tolerate more classification in the training data. Is it clear? अगर आप C की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल लो लेंगे मतलब यू आर एक्सेप्टिंग मोर एरर. इज इट क्लियर? मोर एरर मींस Yes, व्हाट? sir. मार्जिन को जो आपने बाउंड्री डिसाइड कर रखी है उस बाउंड्री को वायलेशन को आप और ज्यादा एक्सेप्ट करते जा रहे हो. अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लो तो इस केस में क्या होगा, आपकी एरर हाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना? आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते जा रहे हो ना, सॉफ्ट मार्जिन की ओर मूव कर रहे हो. और जब बहुत ज्यादा सॉफ्ट मार्जिन की मूव करोगे एरर आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी ट्रेनिंग में ही, तो मॉडल कैसा हो जाएगा? अंडर फिटिंग हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर. So that's what it is written here. Okay, this can lead to a simpler decision boundary and potentially higher bias. And if you are moving towards higher bias, it means you are moving towards underfitting. Clear? Conversely, a large value of C means what? You are denying to accept error. Okay, it means you are denying to have some straight violation. Okay, it means what? You are becoming a harder margin. Okay, meaning the classifier will aim to classify all training examples very correctly. Is it clear? Yes or no? Clear, bhai? Yes, sir. This can lead to a more complex decision boundary and potentially higher variance. Is this clear? Yes, sir. So इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या बोल रहे हो? ओवरफिटिंग की ओर मूव कर रहे हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर हो गया? जस्ट हाँ. व्हाट इट मींस लार्जर सी वैल्यू का मतलब आप जो है अपने डिसीजन बाउंड्री को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो ताकि वो एक भी मार्जिन एरर ना होने दे. इज इट क्लियर? हाँ सर. So that is the thing. Okay, so that's what it has written. Okay, so C parameters के याद हो गए ना?
क्लियरली याद रखें, सी पैरामीटर्स की लो वैल्यू लोगे मतलब कि आप एरर को अलाउ कर रहे हो, ज्यादा एरर को अलाउ करोगे तो अंडर फिटिंग। क्लियर हुआ? सी की Yes, sir. वैल्यू ज्यादा ले रहे हो मतलब कि आप एरर जितना कम हो सके उतना करने की कोशिश करो, और जब एरर सारे कम करना चाहोगे तो एक ही सिचुएशन में कि आप डिसीजन बाउंड्री को लीनियर न लेकर के उसको मूवमेंट करा रहे हो, ताकि वो एक भी एरर न जनरेट होने दे। तो उस केस में आपका क्या होगा भाई? ओवरफिटिंग होने लगेगा। क्लियर है? हाँ सर। तो सी पैरामीटर क्लियर हो गया? हाँ। चलो भाई मैं इसका ही बताऊंगा गामा पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, इसको लिख लेना ठीक है कहीं पे, ताकि तुमको याद रहे। तो हाँ भाई ये इतना हो गया। ठीक, सो ये आपका सी पैरामीटर का एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, यू मे गो थ्रू दिस थिंग्स। अब जो है लेट्स टॉक अबाउट लॉस फंक्शन। इज इट क्लियर कि यहां पे जो हम लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं वो हम हिंज लॉस का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब हिंज लॉस क्या होता है? चलो हिंज लॉस को समझते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने ये जो स्ट्रीट है ना, जैसे सपोज करो हिंज लॉस के बारे में मैं बता रहा हूं। सपोज करो ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये ग्राफ, इसको ऐसा कुछ समझना। आपका ये डेटा है, ये मतलब कि आपका स्पेस है, डेटा स्पेस है। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ क्लास डेटा इधर है। ओके, लेट मी डिफाइन इट एज अ ब्लू वन। इज इट क्लियर? यस सुनो। हाँ सर। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री है, इट मींस ये आपकी स्ट्रीट है। ओके, हैविंग सम पॉइंट हियर। ओके, और इधर की साइड पे आपकी ग्रीन डेटा है, या फिर हाँ ग्रीन चलो ले लो। दिस मच थिंग इज क्लियर? ये सुनो। ओके, हाँ सर। अब यहां पे हिंज लॉस ने क्या किया हुआ, जो ये मेन बाउंड्री लाइन है ना, इसको उसने जीरो कंसीडर कर लिया। ठीक है, सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लिया। क्लियर? यस सर। इस वाली स्ट्रीट, इस वाली बाउंड्री को उसने +1 कंसीडर किया हुआ। आई होप दिस मच थिंग इज क्लियर। और इस वाली बाउंड्री को उसने -1 कंसीडर किया हुआ। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके यस सर। ओके, और अभी जो हम रेफरेंस ले रहे हैं इस ब्लू पॉइंट को ले रहे हैं। क्लियर है? हाँ। ब्लू पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, ब्लू पॉइंट अगर +1 से राइट हैंड साइड पर, मतलब कि पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1, अगर इस किसी भी लोकेशन पे ग्रेटर देन इक्वल 1, ओके, इस स्केल पे अगर लाई करता है तो मेरी एरर क्या होगी? 0 होगी कि 0। नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हम स्ट्रीट वायलेशन कर ही नहीं रहे। क्लियर हुआ? हाँ सर। अगर मेरा कोई ब्लू पॉइंट यहां पर है, इट मींस अगर मैं इसकी लोकेशन सेट करूं 0.6 पर है, तो एरर कितना हुआ भाई मुझे ये बताओ। कम होगा बट इट विल बी देयर। इट विल बी दिस मच एरर, है कि नहीं? मैं जो एग्जैक्ट बाउंड्री से इतनी डिस्टेंस इधर आया हूं, इजंट हाँ सर। इतनी डिस्टेंस मैंने वायलेट किया है, तो ये मेरा एरर होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये कितना होगा भाई? 0.4 हो। 0.4। हाँ। इज इट क्लियर? यस सर। अगर सेम मेरा ग्रीन ब्लू पॉइंट अगर मेरा यहां पर आ जाए तो ये कितनी एरर होगी भाई? 1 की एरर होगी 1। कि नहीं? हाँ। ठीक, और इसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये स्केल बढ़ती चली जाएगी सर।
So isn't it this follow a linear way? Yes or no? Yes, sir. That's what it is written here. See, just look at here. Okay, अगर वही डेटा मेरा यहां पे लाई कर रहा है तब तो नो एरर है, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने एरर को वाई एक्सिस ले लिया है, इज इट क्लियर? हाँ सर। तो जब वो राइट हैंड साइड, ये आपका बाउंड्री का जो है मतलब कि क्या कहते हैं इसको, राइट हैंड साइड है, ठीक है, फॉर ब्लू पॉइंट। तो अगर वो डेटा मेरा यहां पे लाइक कर रहा है देन देयर इज नो एरर। बट एज जैसे ही उसने इसको वायलेट करना शुरू किया तो देखिए एरर किस फॉर्मेट में बढ़ेगी, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा एरर। तो लीनियर फैशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो दैट्स व्हाट इट इज। अब जो है यहां पे देखोगे तो यहां पे मैंने डिफाइन कर रखा है +1 मींस एक्चुअल क्लास +1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ब्लू पॉइंट को रेफरेंस ले रहा हूं। इज इट क्लियर? हाँ। सुनो, और एक्चुअल क्लास -1 मींस कि मैं रेड पॉइंट को, इस ग्रीन पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं। तो ग्रीन पॉइंट के लिए वायोलेशन कब होगा, जब आप -1 से राइट हैंड साइड पे जाओगे। इज इट क्लियर? यस सर। ये सुनो, तो अब एक बात बताओ, ये मेरी एक्चुअल क्लास है, ये मेरी प्रिडिक्टेड क्लास है, और ये मेरा लॉस है। कैलकुलेट करके देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक्चुअल है, ये प्रिडिक्टेड है, तो लॉस कितना होगा, और ये एक्सप्लेनेशन है। क्लियर हो गया, हाँ या ना? इन दो हाँ सर। स्लाइड्स पढ़ो, जहां न समझ में आए जस्ट लेट मी नो। ओके, फुल एक्सप्लेनेशन है, इसको पूरा कंप्लीट करो। आई एम कमिंग।
हाँ भाई, देखा, समझ में आया कुछ ऐसा जो पूछना चाह रहा हो? नो सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट हुई, सारी चीजें फुल एक्सप्लेनेशन सर दे दिया, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस। सो यहां तक तो देखो हम लोगों ने लीनियर जो क्लासिफिकेशन था उसकी बात की। इज इट क्लियर? यस सर। Now let's talk about some non-linear classification. Okay. So just look at this one. Okay. Look at this one. So just read this first. Okay. Although linear SVM classifier are efficient and work surprisingly well in most cases, many datasets are not even close to being linearly separable. Is it clear? Yes So sir. one approach to handling non-linear dataset is to add more features such as polynomial features. So just look at here, okay. So अभी क्या है यहाँ पे, सपोज करिए मैंने एक फीचर ले रखा है, उसके बेसिस पे मैंने क्लास का रिप्रेजेंटेशन किया। तो यहाँ पे देखो ब्लू क्लास और जो ग्रीन क्लास थे वो सारे एक ही प्लेन पर आ रहे थे। इज दैट क्लियर Yes है? sir. सो इस केस में क्या, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ बाउंड्री, अ स्ट्रीट, ओके, व्हिच कैन डिस्टिंग्विश, व्हिच कैन सेपरेट दीस टू क्लास? इट्स नॉट No. पॉसिबल, ओके। But in case if I add one more dimension in this parabolic form, okay, x1 square. So now you may see your data will look in this form. And once your data in this form, now you can add, you can define this street which can separate these two classes. Is it clear? Yes sir. ओके, इट मीन्स अगर आप इसमें कुछ फीचर्स ऐड करके एनी हाउ अपने डेटा को, है ना, इन मोर डायमेंशन में अगर विजुअलाइज करोगे, देन इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द स्ट्रीट्स व्हिच कैन डिस्टिंग्विश दोस क्लासेस। ओके, इज इट क्लियर? सो फॉर दैट थिंग हियर in SVM we have polynomial kernel. Okay, this functionality kernel, okay, kernel is there. So if I show you that thing, so let me define. So अगर मुझे ये मॉडल चेक करना तो sklearn ये svm फैमिली के हैं, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो यू नीड टू डू व्हाट, डॉट svm, और यहां से आपको क्या चेक करना है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर चेक करना। सो यू विल गो विद svc। इज इट क्लियर? Yes sir. और रिग्रेशन में जाना हो तो किस में जाओगे, SV, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। ओके, सो sklearn डॉट svm क्लास में आपको जाना, वहां पे क्लासीफायर है तो svc पे जाइए, रिग्रेसर पे काम कर रहे हैं तो svr पे जाइए। अभी हम लोग क्लासीफायर की बात करें, सो दैट्स व्हाट वी आर हियर। तो यहां पे देखिए एक कर्नल पैरामीटर है। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके, सो कर्नल पैरामीटर जो है, आप अगर यहां पे चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ कर्नल पैरामीटर्स हैं। बाय, एक तो लीनियर कर्नल है, अगर आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल तब तो आप लीनियर कर्नल ले लीजिए। अदरवाइज आपके पास सिग्मॉइड है, आरबीएफ है, रेडियल बेसिस फंक्शन है, ओके, एंड पॉलिनोमियल है। ठीक है, प्री कंप्यूटेड हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है, यही तीन यूज करते हैं, ये चार। इनमें भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है वो है आरबीएफ, रेडियल बेसिस फंक्शन। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes sir. अगर आप चेक करोगे, है ना, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओके, कि क्या है क्यों है। आप चाहिए तो फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर आप चेक करोगे, है ना, रेडियल बेसिस फंक्शन का, सो उसमें एक गामा पैरामीटर होता है, ठीक है, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट दैट थिंग, व्हाट इज से दिस गामा, ओके, माइनस गामा। तो ये गामा जो है ये भी एक हाइपर पैरामीटर है जो कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में हेल्प करता है। ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट दैट थिंग आल्सो। सो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना? Yes sir. So adding polynomial feature is a solution that can be used to solve classification challenges involving complex data. However,
A low polynomial transformation cannot deal with very complex data set. Okay, and with a high polynomial degree, it creates a huge number of features, making the model slow. Is it clear? Yes, sir. Fortunately, when using SVMs, we can apply a mathematical technique called the kernel trick. It makes it possible to get the same result as if you added many polynomial features, even with the very high degree polynomials, without actually having to add them as features. Is it clear? सो एक्चुअली में हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम उस पे फंक्शनैलिटी, देखिए जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने फंक्शनैलिटी अप्लाई की, ठीक है। सो फंक्शनैलिटी अप्लाई करके जो है हम जो मतलब कि हायर डिग्री के जो डेटा सेट्स हैं उनको भी कैप्चर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कर्नल ट्रिक। इज इट क्लियर? यस और नो? I guess, sir, but I guess we don't really have any explanation, right? That's why it's a bit hard to understand. क्या हो रहा है समझ आ रहा है, but like क्यों हो रहा है तो नहीं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मतलब कि इसमें जो है ना कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे है ना उसके डायमेंशनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने हमको डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इनको मोर एक्सप्लेनेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाए। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, x1 स्क्वायर ले लिया तो ऑटोमेटिकली वो करेक्टली डिफाइन होने लगा। सो जो ये x, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल, देखो मैंने भी दिखाया था ना कर्नल में एक होता है पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर आपका x1 डेटा है ना, अगर आपका x1 डेटा है तो आप इस पे किस डिग्री का अप्लाई करना चाह रहे हो। कोई फंक्शन है, सपोज करिए आपका कोई y, कोई x का फंक्शन है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका इनपुट है। अब आप इस पे कौन सा फंक्शन डिग्री फॉर्मेट में, लेट मी डिफाइन इट एज कैपिटल F, इसमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो। सपोज करो मैं पॉलिनोमियल अप्लाई करना चाह रहा, तो पॉलिनोमियल का करता है डिग्री में इंक्रीज करता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस फॉर्मेट में, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैं वहां पे कौन सी डिग्री यूज करूं ताकि मैं जो है वाइडेस्ट स्ट्रीट फाइंड आउट कर पाऊं क्लास को सेपरेट करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो जब कर्नल पॉलिनोमियल चूज करोगे तो उस केस में आपको डिग्री डिफाइन करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? अगर मैंने कर दिया कर्नल पॉलिनोमियल, है ना, समझ रहे हो, पॉली कर दिया, तो इसके साथ मुझे एक पैरामीटर और डिफाइन करना पड़ेगा डिग्री, और ये हाइपर पैरामीटर होगा, ठीक है। आपको फाइंड आउट डिफरेंट डिग्री के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा किस डिग्री के लिए, है ना, किस डिग्री के लिए आपका मॉडल बेटर रिजल्ट दे रहा है। इज इट क्लियर? okay. And sir, this gets applied to all the features, like they will all be increased to the same degree, transformed, sorry. हाँ, काइंड ऑफ वो चेंजेस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में हम डिग्री पे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, क्लियर है। आरबीएफ में हम कर रहे हैं कि वेरिएंस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएंस के बेसिस पे इसमें गामा पैरामीटर होता है, वो कि वेरिएंस की डिग्री को कैप्चर करता है, ठीक है। okay. Sir, so different हमें यहाँ kernels choose करने पे we use different methods of transformation, right? हाँ, Okay. लेकिन ये फाउंड मतलब कि ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स ये फाउंड हुआ है कि जो आरबीएफ है वो बेस्ट है। Okay, sir. ठीक है, आरबीएफ मतलब कि आपको इन सब में से जो सबसे बेटर परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ टाइम, ओके, मोस्ट ऑफ टाइम देता है वो आरबीएफ देता है। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो कर्नल क्लियर हो गया भाई? कुछ ऐसा जो ना समझ प्लीज बता दो। तो पॉली अगर यूज करना चाह रहे हो तो उस केस में आपको डिग्री बतानी पड़ेगी। हम हमेशा आरबीएफ के साथ है, तो आरबीएफ हर तरीके के डेटा सेट पे वर्क कर जाता है, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया भाई? हाँ। अब इसमें एक होता है गामा पैरामीटर। तो जब भी आपका कर्नल आरबीएफ हो या पॉली हो या सिग्मॉइड होता है ना, तो उसमें एक फैक्टर हम एसोसिएट करते हैं गामा।
मल्टीप्लाई में, है ना? क्लियर है? यस सर। ये उसके इन्फ्लुएंस को मतलब कम या ज्यादा करने की कोशिश करता है, ठीक है? सो ये भी एक हाइपर पैरामीटर है। अब इस गामा का इंपैक्ट क्या पड़ता है अगर आप लोअर वैल्यू लो या हायर वैल्यू लो, वो मैंने देखो यहां पे तुमको भेज दिया है, तो चेक करोगे मैंने यहां पे भेज दिया, देखो गामा पैरामीटर। सो गामा पैरामीटर क्या बताता है कि जस्ट रीड दिस, ओके, वेरी इजीली आई हैव रिटन। सो गामा पैरामीटर्स डिटरमाइंस द इंफ्लुएंस ऑफ सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल with low value meaning far and high value meaning close. Okay, just read what it means. So a small gamma value implies a large radius of influence where points further away are considered in the calculation of the decision boundary. Is it clear? यस सर। Okay. सो अगर स्मॉल गामा ले रहा हूं मतलब कि आप डेटा इसके इस डेटा की इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हो, तो मतलब जो फर्दर बहुत फार अवे डेटा है उनको भी आप कंसीडर कर रहे हो किसके डिसीजन बाउंड्री को कैलकुलेट करने के लिए। और जब आप ऐसा करोगे सो दिस कैन लीड टू अ स्मूदर डिसीजन बाउंड्री। याद आया? स्मूदर डिसीजन बाउंड्री मींस हायर बायस, and if it is higher bias it is underfitting. Is it clear? यस सर। Okay, so smaller gamma means underfitting. Similarly, अगर आप हायर गामा वैल्यू पे जाओगे, लार्ज गामा वैल्यू पे जाओगे, तो वो मतलब कि आप स्मॉल रेडियस के इन्फ्लुएंस, ट्रेनिंग डेटा के स्मॉल रेडियस के इन्फ्लुएंस पे फोकस करो। जब स्मॉल रेडियस के इन्फ्लुएंस पे फोकस करोगे तो मतलब कि आप मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री बनाना चाहोगे ताकि आपका वेरिएंस हाई हो, और जब वेरिएंस हाई होगा तो क्या होगा? ओवरफिटिंग होगा। इज इट क्लियर? यस सर। So that's what this gamma variable. So ये दो पैरामीटर क्लियर हुए कि नहीं? सो क्लासिफिकेशन के केस में सी पैरामीटर और गामा पैरामीटर, ये दो जो पैरामीटर हैं वो हाइपर पैरामीटर होते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ सर। यू मे चेक इट हियर। सी हो गया, कर्नल हो गया एंड गामा हो गया, ठीक है? ये मेन आपके पैरामीटर्स हैं फॉर योर मॉडल बिल्डिंग। ओके, यस सर। चलो, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन के केस में, है ना, कि हम डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सारा झाम ताम कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिग्रेसर प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर हो गया ना भाई? हाँ सर। अब रिग्रेसर प्रॉब्लम में हमारे पास क्लास तो है नहीं भाई, ठीक है? यहां पे तो सिर्फ डेटा है। इज इट क्लियर? हाँ सर। ये सपोज करिए ये आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। ओके, अब यहां पे जो है सपोज करिए आपके पास एक पॉइंट आया, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें यह फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, टारगेट वेरिएबल। तो एसवीआर के केस में क्या होता है, हम इसको रेफरेंस मान करके हर एक डेटा पॉइंट, मतलब हम लर्निंग कैसे करते हैं, डेटा पॉइंट को रेफरेंस मान करके एक एप्सिलॉन रेडियस यहां पे यूज होता है, ठीक है? एप्सिलॉन, ओके, रेडियस यूज होता है। एंड इस एप्सिलॉन रेडियस को कंसीडर करके, इट मींस इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा इस एप्सिलॉन डिस्टेंस का रेडियस कंसीडर करके एक हम ट्यूब डिजाइन करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ट्यूब डिजाइन करते हैं जो कि जिसका रेडियस कितना होगा? एप्सिलॉन रेडियस। इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ या ना? यस सर। तो इस रेडियस के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन ट्यूब। ओके, एप्सिलॉन ट्यूब। अब इस रेडियस के, इस ट्यूब के अंदर जितने डेटा पॉइंट आएंगे, वी विल कंसीडर ओनली दोज डेटा पॉइंट टू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू फॉर दिस। इट मींस हम सिर्फ उन्हीं डेटा पॉइंट्स का मीन लेंगे
to calculate this final value for this data. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. ओके अब एक सिंपल सी चीज समझो, जितना मैं रेडियस बढ़ाता जाऊंगा उतना क्या होगा, डेटा इसके अंदर आते जाएंगे, मतलब जो इस पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे डेटा है अब हम उनको भी कंसीडर कर रहे हैं. इज इट? Yes, sir. क्लियर हो गया? तो वो एरर हाँ. में भी फ्लक्चुएट करेगा ना. तो ये रेडियस जो ये एप्सिलॉन है ये मेरा हाइपर पैरामीटर होता है. क्लियर हुआ? हाँ सर. क्योंकि रेडियस बढ़ाओगे घटाओगे उस बेसिस पे आपका एरर कैलकुलेट. तो वो देखो मैंने यहां पे लिख दिया. सो द गामा पैरामीटर, सॉरी दिस एप्सिलॉन. सो अगर स्मॉल एप्सिलॉन वैल्यू ले रहा हूं, when the epsilon value is small, the margin of tolerance around the predicted value is narrow. Is it? Yes, sir. This means what? The model aims to fit the training data very closely. And if you are aiming to fit training data very closely, it means what? You are moving towards the Overfitted. lower bias. So lower fit bias पे जाओगे तो वो overfitted हो जाएगा भाई. समझ गए? हाँ सर. Larger epsilon means what? The margin of tolerance around the predicted value is wider. Wider होगा तो मतलब क्या होगा भाई? हाई बायस की ओर मूव कर रहा हो, और हाई बायस के मूव करोगे तो मतलब क्या होगा? अंडर फिटिंग जाएगा भाई. क्लियर है? Yes, sir. So that's what we have. So इतनी चीजें क्लियर हो गई. So now let's talk about sklearn .svm.svr. तो बाकी चीजें तो एज इट इज रहेंगी. ठीक है, कर्नल देखो वहां पे रहेगा ही रहेगा, डिग्री पॉलिनोमियल के रहेगा ही रहेगा, गामा कर्नल के लिए रहेंगे ही रहेंगे. यहां पर एक एप्सिलॉन और आ जाता है पैरामीटर. इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? So, sir, is it still working in the same way that it's trying to find the like there's no decision boundary or anything in this, right? Now it's time to find out this tunnel. Okay, Um, एप्सिलॉन एसवीआर के केस में वो टनल फाइंड आउट करता है कि कौन सी टनल पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए बेस्ट रहेगी. इज इट क्लियर? Okay. And है ना? how does it decide like that orientation of it, for example? क्योंकि tunnel draw कर रहा है, right? या सो सी, जैसे सपोज करो ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं. ठीक है, ट्रेनिंग के केस मेरे पास डेटा होगा नहीं, है ना? Yes, sir. मतलब ट्रेनिंग डेटा तो है नहीं, मेरे पास ये डेटा है. हाँ. इज इट? तो उसने क्या किया, सपोज करो इस पॉइंट के लिए ये जो x1 और x2 की वैल्यू थी इसके लिए मुझे डेटा फाइंड आउट करना है. तो ये क्या करेगा, कुछ रेडियस का टनल यहां से डिसाइड करेगा. इज इट? Okay. कुछ भी रेडियस का वो लेगा. अब रेडियस मिला, टनल मिला, इसके अंदर डेटा पॉइंट है, इसने मीन वैल्यू निकाली. इज इट? Okay. हाँ. मीन वैल्यू निकाली तो ये आपका आउटपुट y प्रेडिक्टेड मिल गया. एक्चुअल वैल्यू आपके पास गिवन है, एरर कैलकुलेट हो गई. ठीक है, Okay. अब एरर मिनिमाइजेशन कैसे होगा? एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करने से. क्लियर हुआ? So, sir, does the epsilon value also determine like right now you have, for example, drawn the tunnel going downwards, right? Almost like a vertical orientation. Does the epsilon value also determine like how it's because the radius is one thing, right? How wide it would be. Yeah, maybe that's why we have this kernel, isn't? अगर मेरा लीनियर है तब तो टनल से काम चल जाएगा, है ना? तब तो ट्यूब हाँ. से काम चल जाएगा. लेकिन अगर मेरा मल्टी डायमेंशनल डेटा है देन क्या होगा? ओके, तो उस केस Okay. में कर्नल यूज होता है. क्लियर हुआ? हाँ sir. आई होप दिस मच थिंग इज क्लियर. क्लियर है भाई? Yes, sir. तो ये था हमारा एसवीएम था. हालांकि सबसे देखो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सी पैरामीटर पे करते हैं. ओके, लेकिन जब आपका डेटा बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना हो तब हम ये गामा और एप्सिलॉन पे वर्क करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है भाई?
ऐसे एक कोफिशिएंट भी होता है ना। कोफिशिएंट क्या है, मतलब कि जो आपके कर्नल यूज होते हैं ना, सिग्मॉइड और क्या बोलते हैं इसको, पॉली, उसके उनके साथ केवल ये एक कोफिशिएंट ऐड होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट टाइप का है, ठीक है। तो उस Yes, sir. कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट वी नीड टू फाइंड आउट यूजिंग दिस कोफिशिएंट। इज इट क्लियर? लेकिन नॉर्मली हम लोग आरबीएफ यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट वरी अबाउट दिस कोफिशिएंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो सी पैरामीटर, इस पे फोकस करते हैं। और सी पैरामीटर हमेशा याद रखना L2 रेगुलराइजेशन है। क्लियर है? रेगुलराइजेशन पैरामीटर है ना, सो इट इज ऑफ L2 टाइप। इज इट क्लियर? यस और नो? So कौन सा है? So there is C coefficient C2. सी हो गया, देखो अलग अलग लिखना, ठीक है। एसवीएम के लिए क्या कौन कौन से हैं? सी है, ठीक है, कर्नल है, डिग्री क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल अगर यूज करोगे तो डिग्री है। क्लियर है? हाँ. कर्नल में बेस्ट कौन सा है? आरबीएफ है। हाँ. और जब आरबीएफ यूज करोगे तब डिग्री यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। Yes. RBF और तेलंगाना. हाँ. क्लियर हो गया? हाँ. एसवीआर के केस में वो सारे तो रहेंगे ही, एक पैरामीटर और जुड़ जाता है, एप्सिलॉन। Okay. दैट्स इट। क्लियर हो गया? Yes, sir. यू मस्ट क्लियर हो, ओके। उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहां पे इन्होंने दे रखा है। epsilon, see, epsilon in the epsilon SVR model, it specifies the epsilon tube within which no penalty is associated in the training loss function. It means उस टनल के अंदर जो भी पॉइंट आ जाएंगे उनको हम एरर नहीं कैलकुलेट करो, पेनाल्टी नहीं ऐड करो, मतलब क्या कि उसको हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम फाइनल आउटपुट निकाल रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज। इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव वैल्यू। क्लियर हो गया? क्योंकि रेडियस sir. नेगेटिव ही जाएगी ना भाई। हाँ. That is the thing. So I think this SVM is clear to each one of you. It is one of the very important algorithm. Okay. So you should go through with these things. Okay. I hope यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। हाँ सर. तो आज हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया ना। क्या क्या कर लिया? पहले तो आउटलायर्स को कैसे हैंडल करना वो चेक कर लिया है। देन नाइव बेस आई थिंक खत्म हो गया है ना। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट नाइव बेस, हाँ हाँ. है ना। देन वी टॉक्ड अबाउट एसवी। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है एसवीएम का ये कोड देख लेंगे, है ना। ठीक है. ओके, हाँ. इसके बाद फिर डिसीजन ट्री यूज करें। तो अब जो है जो मॉडल अभी आ रहे हैं ना एसवीएम से, जो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये तो स्टैटिस्टिकल अगर मॉडल डिजाइन कर रहे हो, है ना, तो उसमें तो आपको उस तरीके से एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके. क्लियर है? हाँ. लेकिन अब जो मॉडल आएंगे, है ना, वो पावरफुल होते जाएंगे। और पावरफुल उनको बना हम कैसे रहे? डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स का यूज करके, ठीक है। तो अब हाइपर पैरामीटर्स मॉडल बाय मॉडल बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर. सो आई होप सही लगा, समझ में आ रहा होगा भाई कैसे कर रहे हैं। कोडिंग पे प्लीज बहुत फोकस करो, ठीक है। हाँ सर. कोडिंग पे बहुत फोकस करो। मैंने जो लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक जैसे मैंने केनन पे दिया हुआ है ना, केनन पे आपका एक ही मॉडल था ना। हाँ, KNN में we did the separate petal that one. रिग्रेशन वाले पे किया था ना? नहीं, अच्छा, क्लासिफिकेशन पे दिया। हाँ, ठीक। classification. अब जैसे आगे मैं जो भी मॉडल तुमको दूं, है ना, अगर उसमें क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो जितनी हाँ. एल्गोरिथम आपने क्लासिफिकेशन के पढ़ रखी है वो सारी अप्लाई करो आप, ठीक है। सर प्रैक्टिकली क्या वही करते हैं, like do we just try out a bunch of algorithms first and just see which ones make sense? करते हैं विद सम इंट्यूशन, ओके, विद हाँ. एक्सपीरियंस। तो ये मतलब लगने लगता है कि हाँ यार, अगर मैं इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है
अगर मॉडल यूज करो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ब्लाइंडली नहीं कि मतलब, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी एल्गोरिदम है, हाँ ठीक है। तो विद एक्सपीरियंस यू विल गेट की नो व्हिच वन एल्गोरिदम यू कैन अप्लाई हियर। यस सर। हाँ चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कवर अप करो, है ना। यस सर। जहाँ कोई प्रॉब्लम है प्लीज इसको फोकस करो और गूगल करो, ठीक है। और इनकी डिटेलिंग में जाओ। आई विल कल जो है मुझे याद दिलाना, मैं तुम लोग को जो है क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है। कंपनी में कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई विल शेयर यू सम लिंक्स, ओके। ओके सर। तो जैसे जैसे एल्गोरिदम खत्म होती जाएगी, आपको क्या करना है, उन लिंक्स को गो थ्रू करते जाना है, ठीक है। जो ठीक है सर। क्वेश्चन समझ में आए उसको लिख लो, नहीं याद हो रहा है लिख लो, ठीक है। ठीक है इन सर। दिस वे विल बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, ओके। दैट इज द थिंग। हाँ एंड प्लीज यार, जो मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं आपको पढ़ने के लिए, वो पढ़ना शुरू कर दो, है ना। जैसे एमएलओप्स यस का सर। आज भेजा हुआ है, और मैंने एक एमएल का कंप्लीट प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दैट, ओके। इट विल बी अ बिट ट्रिकी फॉर यू, ओके। तो वो टाइम सर लेंगे भाई। आर यू टॉकिंग अबाउट द प्लेलिस्ट्स, वो जो? जो आज मैंने शेयर किया हुआ, ठीक है, ओके हाँ। उसको स्टार्ट करो। और आई थिंक लीड कोड और ये सारी चीजें आप कर रहे हो, हाँ डीएसए का, लीड कोड का, है ना। चलो इसको करते जाओ, जैसा होगा फिर